Okay, so let's get started soon. So I am Dhirendra Tiwari, colleague of Sandeep sir, and you can clearly see work power energy is an important topic. And you can see consistently from year 2001 until 2023, there have been at least one or two questions. So uh, we are going to do this entire chapter. And so shall we begin with questions right away, or shall we discuss little bit concepts? Can you please open your mic? Let's keep this class interactive. Sir, first you tell about little bit concept. Very good. Okay. So I'm going to discuss about key important concepts, and then we will graduate to the questions, and we will see topic wise, section wise. And now the most important thing to qualify an exam is the ability to solve a new problem using the same concept as studied by everyone else. Okay, so our focus will be problem solving, but let me first do a few basics. Do you know what is the formula for kinetic energy? The kinetic energy we can write as Ke is equal to half mv square, right? And now if I tell you the momentum is given by P is equal to mv, the momentum is a vector quantity. However, we can relate them. If we know the magnitude of momentum, I can write kinetic energy is P square by 2m. Please give a try. If you write P square, you write m square, v square by 2m. Right? Is this clear to everyone? So the relation between kinetic energy and momentum is like this. Now, kinetic energy has several forms. If you consider a body that is rolling, okay, suppose I have a sphere, okay, suppose I have a sphere. Now, this sphere is of radius r, is rolling on a flat surface, okay? This sphere is rolling. Now, if I want to tell about kinetic energy, how do we say? Suppose m is the mass of this and I is the moment of inertia. Then we define kinetic energy as half mv square. Now, suppose this is moving with the velocity v and it is simultaneously rotating with omega. If this is the case, then we say its kinetic energy is half I omega square. Now, if it is doing pure rolling, the condition of pure rolling is v, the velocity of center of mass, is r omega. Is this clear, or shall I make it better? Quick. Let me try one more setting. I'm not able to see the messages, so please feel free to open your mic and say loud. Okay, I think this is better. Am I clear to everyone?
Okay, so Yes, this sir. is the so let me check here. So how do we define angle? Angle we define theta as arc length by radius. So if we take the derivative of this, d theta by dt is equal to omega is equal to v upon r, because dl by dt will be, therefore omega r is v. Now this is the condition for pure rolling. Now moment of inertia of a sphere is 2 by 5 m r square. Is this clear? So you can plug in. Okay, so you can plug in and see. Shall we move on? All of you know these basics, okay? I'm going to move on and I'm going to discuss something about work done. Sir, R is the radius. R is the radius of the sphere. तो ये मैं एक Okay, जनरल sir. वो बताया था कि अगर कोई बॉडी रोटेशन के साथ ट्रांसलेशन भी कर रही हो तो काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह से लिखते हैं. ओके, अब हम फोकस करते हैं वर्क डन पे. नाउ लेट्स डिफाइन हाउ डू वी थिंक अबाउट वर्क. वर्क डन इज इक्वल टू force times the displacement. Now work done is a result of dot product, right? तो कभी कभी वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी. ओके, अब देखिए एक सिंपल केस लेते हैं. हमारे पास एक ब्रिक है, उसके ऊपर एफ फोर्स एक थीटा एंगल पे लगाया गया है और ये ब्रिक एम मास का है. सपोज ये एक डिस्प्लेसमेंट करता है डेल्टा एस. Okay, now this displacement is delta S, then how can we define work done? Now this is a constant force, okay? The life is easy. तो हम क्या करेंगे? Work done is equal to F cos theta times the displacement delta S. Right, क्योंकि जो वर्क कर रहा है वो तो F cos theta है. Right, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. तो हम देख सकते हैं F डेल्टा S cos थीटा. ओके, अगर हम इसे ग्राफ में देखें, इफ वी सी इन ग्राफ, सपोज दिस इज द फोर्स, दिस इज द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, देन इफ आई मूव फ्रॉम R1 टू R2 तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट. और फोर्स थी मेरी फिक्स्ड, क्या थी? F cos थीटा. F cos थीटा एक कांस्टेंट फोर्स से मैंने R1 से R2 शिफ्ट किया, राइट. तो हम वर्क डन कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, राइट. वर्क डन वी डिफाइन एज एरिया अंडर एफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए हम सिंपल डेफिनेशन से शुरू किए थे, लेकिन कभी कभी फोर्सेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, राइट. जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स. अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, सपोज आई हैव अ बिग मास m और मैं स्मॉल m मास को पोजीशन R1
R1 से R2 शिफ्ट करता हूं। सपोज ये मेरी R2 पोजीशन है। ओके, मैंने M मास को R1 से R2 शिफ्ट किया। तो आप बहुत गौर कीजिएगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम कैसे बना सकते हैं इसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। F वर्सेस R, इफ वी ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड, तो फोर्स क्या है? डिकेइंग है, राइट। अगर हमने इसे R1 से R2 शिफ्ट किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया अंडर कर्व। अब ये देखिए, ये किस तरह का फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस is variable, right? So this is a variable force. अगर हमारी फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन हम क्या करेंगे? हमें ये एरिया अंडर कर्व निकालना है, तो हम फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। स्मॉल वर्क डन, अब ग्राफ में देखिएगा हम स्मॉल वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं F वर्सेस R का, कहीं F का मैग्नीट्यूड है सपोज इस तरह से, हम R पोजीशन पे हैं और हम थोड़ा सा इस तरफ मूव करते हैं डेल्टा R, तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारी फोर्स है टाइम्स ये जो डेल्टा R है इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो हम ये एरिया निकालें, राइट। तो देखिए इसमें थोड़ी गलती हो रही है, आप बहुत गौर से देखिएगा। ये डेल्टा W क्या है? DW F DR है, राइट। अब देखिए इसमें मेरी ट्राइंगल की गलती हो रही है, राइट। इसमें मेरी ट्राइंगल की गलती हो रही है, तो मैं क्या करूंगा? अभी हम DR में नहीं, नॉर्मली लिखते हैं। छोटा सा वर्क डन ड्यू टू फोर्स फिक्स्ड, फोर्स हमारी फिक्स्ड है F। तो देखिए ये ट्राइंगल की गलती हो रही है, ऊपर देखिए ये ट्राइंगल सबको दिख रहा है। अब ये गलती अगर मैं मिनिमाइज करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? लिमिट डेल्टा R टेंड्स टू 0। तब क्या होगा? मेरी ये जो गलती है ये छोटी हो जाएगी, राइट। और इसको मैं लिख सकता हूं स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू F DR। एक्चुअली F इनका डॉट प्रोडक्ट है, F डॉट DR, राइट। ये सबको क्लियर है? क्विक क्विक क्विक। अब देखिए, मैं अगर टोटल वर्क डन निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन कहां से? अब देखिए ग्रेविटेशन के मामले में देखते हैं, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इस तरफ है, राइट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा? G M M बाय R²। तो देखिए अगर हम ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं, राइट, तो हमारी फोर्स क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस हो गई। अब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट DR है, सपोज हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट DR लेते हैं, तो वो भी किस डायरेक्शन में है? माइनस में है। माइनस माइनस प्लस हो गया। हमने कहा R1 से R2, कहां से कहां मूव किया? R1 से R2। तो इसकी वजह से हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा G M N। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही छोटा सा इंटीग्रल है ना। हमें मालूम है Z टू द पावर N dz इज इक्वल टू Z टू द पावर N+1 डिवाइडेड बाय N+1, राइट। इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो देखिए
r to the power -2 +1 डिवाइडेड बाय -2 +1। और हम पोजीशन कहां से कहां चेंज कर रहे हैं? लेट मी रिमूव दिस ग्राफ। हम पोजीशन कहां से कहां चेंज कर रहे हैं? अरे कोई तो बताए, सचिन। प्लीज ओपन योर माइक, सचिन। Yes, sir. इंदिरा या रेशमा। देखिए कहां से कहां पोजीशन चेंज कर रहे हैं हम, R1 से हम R2। R2 तक। राइट। तो देखिए वर्क डन कितना आ जाएगा, आप देखिएगा साइन भी वर्क डन का -GM। लाइट नहीं आ रही। Okay, be careful with your background. 1 upon R2 minus 1 upon R1, right? क्योंकि ये Yes, तक क्या sir. था, R की पावर -1। तो देखिए जब हम कोई वेरिएबल फोर्स के साथ वर्क डन निकालते हैं तो हमारी ये सेटिंग चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व निकाल रहे होते हैं वेरिएबल फोर्स के अंडर, तो हमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब भी हमारी फोर्स वेरिएबल है, हम छोटा सा वर्क डन डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ये सबको क्लियर है? देखिए 9th तक तो बहुत अच्छी थी दुनिया, राइट? फोर्स वाज कांस्टेंट एंड एवरीबॉडी वाज हैप्पी। लेकिन जब हम 11th में आते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, राइट? और ये क्या है? वेरिएबल फोर्स है। अब देखिए इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमारा वर्क डन क्या आएगा? G M। अब देखिए R2 जो है वो छोटा है, so R2 will be bigger, 1 upon R2 will be bigger, -1 upon R1। ओके, इसका मतलब है कि जब भी हम ये बॉडी को फार अवे से क्लोज लाएंगे तो हमको वर्क करना नहीं पड़ेगा, हमको वर्क मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही रही थी, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट सम वर्क। हमें क्या है, वर्क हासिल हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? Yes, sir. देखिए वर्क पावर एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वर्क डन अंडर कांस्टेंट फोर्स, एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सेम कॉन्सेप्ट लगता है वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स। फोर्स इज वेरिएबल एंड देन वी कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व। जस्ट हमारी मैथ्स चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम क्या अलजेब्रा यूज कर रहे थे, जस्ट रेक्टेंगल का एरिया विड्थ इनटू हाइट। यहाँ पे क्या है, हमको पहले छोटा सा वर्क डन लेना पड़ेगा और फिर हम एरर नहीं करना चाह रहे हैं, तो सर आइजैक न्यूटन की वजह से हम कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे और बढ़िया से वर्क निकाल लेंगे। ये सभी बच्चे कर सकते हैं? सबको समझ में आया है? Yes, sir. क्विक, वंडरफुल। नाउ दिस इज द थिंग आई वांट टू हियर। तो हमारी क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए। ओके, लेट मी मूव ऑन टू few more interesting concepts. First, I clear the board. अगर हमने ये बेसिक्स को मास्टर कर लिया तो मैं आपको अभी नेक्स्ट सेक्शन में दिखाऊंगा कि आप सारे सवाल हाई स्पीड में सॉल्व कर पाएंगे। सर आपके प्रीवियस लेक्चर्स कहाँ से मिल सकते हैं?
अभी प्रीवियस मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे ग्रेविटेशन के हैं वो आजकल में आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कभी कभी वर्क डन पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव। इसका क्या रीजन है देखते हैं। जैसे ग्रेविटेशन था, इसमें बिग मास m, स्मॉल मास m, है ना। इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में था। तो हमारा वर्क डन क्या हो गया था, F डॉट डेल्टा आर, राइट। F और डेल्टा में, डेल्टा आर में क्या एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाता, F डेल्टा आर, राइट। अगर ऐसा हो, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां हमारे पास Q मास होता है और Q स्मॉल होता है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिपल्सिव है, लेकिन अगर हम इसे डेल्टा आर इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा वर्क डन हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इज F डॉट डेल्टा आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है। इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखिए 180। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 है, तो कॉस 180 कितना होगा, -1। -1। तो देखिए एफ डी आर, तो देखिए माइनस साइन केवल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ओरिएंटेशन से भी आ सकता है। ये सबको क्लियर है? यस सर। सर ओके लेट्स, ये क्लियर है, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन। अब सपोज एक हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग, स्प्रिंग मास सिस्टम। ये इक्विलिब्रियम लेंथ है। अब हम इसको अगर x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं, ओके, सपोज डेल्टा x इज इक्वल टू सम लेंथ l, इससे डिस्प्लेस करते हैं, राइट। तो हमसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वर्क डन, राइट। अब देखिए अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं F, तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू हो जाती है -kx, राइट। अगर हम x डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कोई छोटा सा x डिस्प्लेसमेंट, तो जो स्प्रिंग है वो -kx लगाता है। अब कोई पूछे कि व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये वेरिएबल फोर्स है, राइट। स्प्रिंग की फोर्स कैसी लग रही है, इस तरफ लग रही है, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग कितनी है, -kx। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा W इज F डॉट dx, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए इस समय हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट x इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, राइट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इज -kx, राइट। और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इनका एंगल 180 हो गया, तो प्लस kx। अब हम इंटीग्रेट करेंगे x कहां से कहां तक, 0 से x तक या 0 से l तक, ओके। लेट्स इंटीग्रेट 0 टू l। तो ये क्या हो जाएगा, k x² / 2, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से l। 0 to L। तो कभी भी वर्क डन
is, or energy stored in a spring is half kx square. ओके, अब देखिए लास्ट टाइम मैंने एक और चीज डिस्कस की थी फोर्सेस के बारे में। इलास्टिक फोर्स कैसी होती है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, जल्दी से बताएं। इलास्टिक फोर्स कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है? इज कंजर्वेटिव, Conservative. राइट। कंजर्वेटिव का मतलब है टोटल एनर्जी इज कंजर्व। टोटल एनर्जी कैसे, टोटल एनर्जी इज kinetic plus potential energy. This is total energy. If energy is conserved, change in energy is equal to change in kinetic energy, change in potential energy. Right? This becomes zero. So change in potential energy is equal to minus times change in kinetic energy. Right? और यही माइनस टाइम्स होता है वर्क डन। ओके, तो अगर हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसे दूसरे तरह से सोच सकते हैं, फोर्स क्या होती है स्प्रिंग की, माइनस डी यू बाय डी एक्स। तो देखिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन है, तो इसको अगर हम लिख लें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स। राइट, हमने डिफाइन किया था हमारी स्प्रिंग की वजह से फोर्स क्या थी, राइट। ये सबको क्लियर है? ओके, इन जनरल कोई भी फोर्स हो, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, और फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इज माइनस डी यू बाय डी आर। अब कोई मुझसे पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, हाउ आर दे रिलेटेड? तो हम कैसे रिलेट करते हैं, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है, ग्रेडियंट इज डी बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी बाय डी वाई जे कैप प्लस डी बाय डी जी के कैप। ओके, अब ये पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में केवल इतना ही है। ओके, तो हम इस पे ही फोकस रहेंगे। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन होता है। ये सबको क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? क्विक क्विक क्विक। अब देखिए, वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो एक और चीज लिख लें, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। इज पाथ इंडिपेंडेंट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सबको क्लियर है? क्विक क्विक Yes, क्विक। sir. Yes, sir. ये सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज, कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, राइट। और हम पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी हम एक और पॉइंट लिख ले, पोटेंशियल एनर्जी पीई is defined only for
only for conservative forces. आपने कभी सुना है या पढ़ा हो फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी? राइट, कभी नहीं सुनी होगी, है कि नहीं? लोग हंसने लगेंगे अगर आप बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन. व्हाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन इज डिसिपेटिव. लेकिन आप बोलेंगे gravitational potential energy, so everybody will think about it, right? So you know what are the conservative forces? एक तो इलास्टिक होती है, फिर ग्रेविटेशनल होती है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं. ओके, ये सबको क्लियर है? क्विक 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 क्विक. Yes, यस sir. और नो? वेरी गुड. आप थोड़ा आंसर करते जाएं. अब देखिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क डन बाय फ्रिक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो देखिए कभी भी कोई बॉडी है, राइट, अगर फ्रिक्शन जनरली रेजिस्ट करता है, राइट, इसका मतलब क्या है कि अगर हमने इसे डिस्प्लेस किया ये पाथ पे, या हम इसको सपोज 2D में है, इसको पहले इधर ले गए, फिर इसको इधर लेके आए, राइट, यहाँ पे पाथ लेंथ L है, यहाँ पे क्या है, L और L है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? सपोज दिस इज OA, वर्क डन इन OA क्या हो जाएगा? FR इंटू L, राइट. लेकिन अगर हम OPQ लेके आए, ये 2 डायमेंशन में है, फ्रिक्शन हमेशा अपोज कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग OPQ, क्यू भी कितना है, उतना ही दूर है, L डिस्टेंस पे है O से, Y इस एक्सिस पे, ये कितना हो जाएगा? FR इंटू 2L, राइट. अगर हम इसको यहां से फिर से A पे ले गए, तो फिर से L चलाए, तो क्या हो जाएगा टोटल? 3L. तो देखिए अगर हम OA सीधे लेके आए तो वर्क डन फ्रिक्शन इनटू लेंथ हो गई, लेकिन हम उसको अगर इस पाथ से लेके आए, 1 2 3, 3 टाइम L डिस्टेंस चले, तो वर्क डन क्या हो गया? 3L टाइम्स फ्रिक्शन. तो ये क्या है, पाथ डिपेंडेंट हो गया. ये सबको क्लियर है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रिक्शन इज क्विक क्विक क्विक. फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव. ओके, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, तो हमने की पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. अब मैं ये बोलूंगा कि हम लोग क्विकली सवाल करते हैं. अब सवाल करेंगे तो हमें कुछ और आइडियाज आएंगे, और ये आइडियाज या कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे कि कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं. आप देखेंगे कि बहुत रिपीटिशन हो रहा है, राइट. तो अगर आपको AMU के एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट लाना है, तो आपको PYQ देखना बहुत जरूरी है. ओके, अब जहां जो कॉन्सेप्ट आएगा उसे मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करूंगा.
Okay, very well. Give me a second. Okay, let's begin to solve this problem. हमें given क्या है? The linear momentum of a body is increased by 10%. What will be the percentage change in the kinetic energy? Quick. हम क्या relation use करेंगे? Kinetic energy is P square by 2m. Right? So how can we solve this? अगर हम इसको just differentiate करें तो क्या हो जाएगा? या delta K is twice delta P, या हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारी लीनियर मोमेंटम 10% चेंज हुई तो कितना चेंज हुई? P की जगह 1.1 P हो गई। ये हो गई K डैश। अब K डैश क्या हो गई? 11 का स्क्वायर 121। तो हमारी न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? 1.21 इनिशियल। तो इंक्रीज कितनी हुई? डेल्टा के बाय के, ये हो गई 21%। ये सबको क्लियर है? यस और नो? क्विक। Yes, sir. Clear. Okay, very well. So let's move on. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में रिलेशन। देखिए, द काइनेटिक एनर्जी, ये 2016-27 में आया है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is half of that of another particle of m by 2. तो गिवन क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1, सॉरी, ये क्या है? m v स्क्वायर बाय 2। ये K2 का हाफ है।
अब K2 क्या है? K2 इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मास m/2. तो क्या काइनेटिक एनर्जी है? m/2. वी डोंट नो इट्स वेलोसिटी. सपोज this one is v1, this one is v2 square by 2. If the speed of the heavier particle is increased by 3 meter per second, तो हमारी क्या है? v1 को हम v1 plus 3 कर देते हैं. Its kinetic energy becomes equal to the original kinetic energy of the lighter particle. लाइटर पार्टिकल क्या है? m/2 मास का है. इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है. इसी के बराबर हाफ m v1 plus 3 का स्क्वायर हो जाती है. तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज v1 एंड v2, राइट? अगर हम पहली ये दो इक्वेशंस लें तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हाफ m v2 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाय 2. ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन, राइट. हमारी दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है? ये वाली इक्वेशन है. इससे क्या कर सकते हैं हम? देखिए, v1 plus 3 by v2 इसका स्क्वायर वन बाय 2 है. ये सेकेंड इक्वेशन. अगर हम पहली इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करें, पहली इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास? v1 बाय v2 का स्क्वायर है 1 बाय 4, राइट. इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? v1 plus 3 by v2 is 1 by √2. राइट. इससे हमें पता चलता है v1 बाय v2 इज 1 बाय 2. अब ये इक्वेशन को हम अच्छे से सॉल्व करें. ये वाली इक्वेशन को, ये इक्वेशन को कैसे कर सकते हैं? पहला v1 बाय v2 आ जाएगा प्लस 3 बाय v2 प्लस 3 बाय v2 इज इक्वल टू 1 बाय √2. अब ये तो हमें मालूम है हाफ है. अब पहला रेशियो है हमारे पास v1 बाय v2 हाफ है. ओके. तो अब इससे हम v2 निकाल सकते हैं. v2 कैसे निकाल सकते हैं? 3 by v2 is equal to 1 by √2 minus 1 by 2, and v2 is 3 by 2 minus √2 into 2 √2.
ओके, अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 + √2 ऊपर नीचे, राइट। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 2 + √2, 2 + √2, तो ये क्या आ जाएगा? 3 × 2√2 by a² - b², 4 - 2. So this will become 2 and this will become 2 + 2√2. तो इन द एंड हमारा V2 क्या आएगा? 2 कट गया, 3 × 2√2 × √2, 4 + 2√2, राइट। और इसी तरह से हम V1 निकाल लेंगे क्योंकि हमें V1/V2 मालूम है इज 1/2. Okay, so this one is 1.41 into 2. So 2.8, 426. Okay, okay, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, चलिए इसे फिर से एक बार क्विकली देखते हैं। मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है। जस्ट सेकेंड, एक बार बहुत क्विकली देखते हैं इसको। ओके, जस्ट एक बार देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, m की काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं mu²/2 is half of another m/2 times v²। ओके, फिर क्या बोला? हेवियर पार्टिकल, सो m मास की वेलोसिटी u+3 कर दी जाए स्क्वायर, m हेवियर की बढ़ा दी जाए, देन इट बिकम्स इक्वल टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर पार्टिकल। लाइटर पार्टिकल क्या था? m/2 हाफ v²। देखिए ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं, राइट। हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सपोज हम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करें। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ जाएगा? u+3/u² इज इक्वल टू, ये m/2 चला जाएगा, हाफ हाफ चला जाएगा, 2 v² चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो दिस इज इजी टू सॉल्व, u+3/u इज √2। अब दोनों तरफ -1 और -1 कर दें तो क्या आ जाएगा? 3/u इज इक्वल टू √2 - 1। सो u इज इक्वल टू 3/√2 - 1। अब देखिए इसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 + 1 एंड √2 + 1, तो इससे हमारी u क्या आ जाती है?
√2 का स्क्वायर 2 -1, ये हो जाती है 3 इंटू 2.82. So this becomes 6, so 8.46. ओके, तो इसका नियरेस्ट आंसर है डी, क्योंकि राइट, ये सबको क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन से देखिए क्या आ जाएगा, m/2 m/2 u by v square is equal to 1/4, implies u is equal to v by 2, implies v is equal to 2u. Okay, so answer is slightly different than what are the options, so I don't know. This is the correct answer. Okay, अब ये ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे हैं, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हुई हो. Okay, let's move on. Okay, please have a look. Okay, the next question. A father is racing with his son, has half the kinetic energy of the sun. Suppose the son has mass small m, the father has big M. Okay, now if the father's speed up by 1 meter per second, he would have the same kinetic energy as the sun. So father has kinetic energy, say mu square by 2, and they have given in first condition is half the kinetic energy of the sun. देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. If the father speeds up by 1, u plus 1 into m by 2, he would have the same kinetic energy as the sun. Okay, first condition क्या है? Father has kinetic energy half that of his son. देखिए पिछले सवाल जैसा ही है, राइट? तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लेते हैं. इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? u plus 1 by u का स्क्वायर is equal to, see here m by 2 and m by 2 is gone. Here m by 2 and m by 2 is gone. So this becomes 2.
So again, u plus 1 by u is equal to root 2. And if you do minus 1, u by, sorry, one by u is equal to root 2 minus 1. So u is equal to 1 by root 2 minus 1. Now if you multiply root 2 plus 1, root 2 plus 1, इससे क्या आएगा? Root 2 plus 1 divided by 1. So the initial velocity of the father is 2.414 meter per second, and that is the answer. तो देखिए ये पिछला सवाल भी सेम कॉन्सेप्ट पे था. इनिशियली काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो दे रखा था, फिर फादर की वेलोसिटी इंक्रीज की और उसकी दूसरी रिलेशन थी. So the answer is that calculate the original speed of the father is 2.4. Okay. So I think these are the problems we do for today. Tomorrow afternoon at 3:30, I'm going to take till 5 p.m. and we will finish this chapter. Okay, some 30 problems are remaining and they are characterized in different subtopics. Sir, why did you not take class yesterday? Yesterday I was a bit ill. So now on, we will stick to this. Okay. I will be every day on this timing. So, is there any theory in this chapter? इसमें अभी मैंने जो थ्योरी डिस्कस की थी, बेसिकली बहुत कम थ्योरी है ना? नेक्स्ट क्लास में इतने बजे मैं वर्क एनर्जी थ्योरम डिस्कस करूंगा, है ना? और Sir, आपको only कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. ओके, लेट मी फ्लैश द क्वेश्चंस. ओके, मैं आपको yes. एक बार क्वेश्चंस क्विकली दिखाता हूँ ताकि उसमें डिफरेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप आज जाके है ना कुछ रिवाइज कर लें. देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये मैंने डिस्कस किया है. वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे? डॉट प्रोडक्ट के साथ, राइट? फिर कल मैं और भी चीजें डिस्कस करूंगा. लेट मी गो अहेड. देखिए, वर्क डन, इसमें देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, राइट? सो देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हुक्स लॉ, फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन, राइट? फिर कांस्टेंट फोर्स की वजह से, फिर ये देखिए कांस्टेंट फोर्स की वजह से वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. ये देखिए V इज इक्वल टू ax क्यूब, राइट? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, ये मैंने डिस्कस की थी आज थ्योरी. वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, मैं फिर से करूंगा. देखिए, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन आज मैंने ब्रीफली डिस्कस की. अब वही चीज ग्राफ में पूछ ली गई है, तो देखिए आपको थ्योरी के सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, राइट? इफ यू आर पेशेंट, दिस इज अगेन फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, राइट? ये भी देखिए फिर से फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में आया है, फिर से आया है. देखिए, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी, Okay, sir. राइट? स्प्रिंग फोर्स, फोर्स कंप्रेशन ग्राफ, स्प्रिंग फोर्स आज मैंने डिस्कस किया था. देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, आज डिस्कस की थी. सर्कुलर मोशन और उससे रिलेटेड भी है.
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे करते हैं। इसके बाद इलास्टिक कोलिजन, इसकी थ्योरी मैंने डिस्कस नहीं की है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इलास्टिक कोलिजन टेक्स्ट बुक में देखें। कल मैं इसको क्विकली रिवाइज कराऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार इलास्टिक आया, एक बार इन इलास्टिक कोलिजन भी आया है, राइट। Okay, sir. देखिए Sir, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के एप्लीकेशंस हैं। okay, sir. Sir, chemistry class has started. Chemistry class start. Wonderful. So please carry on. Let's meet tomorrow. We have a lot to do. Power and everything. So thanks a lot for your attention today. We will meet tomorrow and we'll complete all of them. Have a great day. Please move on to your next class.